Very good afternoon to all of you. I graciously and wholeheartedly welcome you all to the second session of today's training program. So for this, I would like to invite Dr. Umar Fayaz Khan from Faculty of Horticulture to deliver his talk on entrepreneurship in aquaculture. Please. Thank you, Ms. Sabeen. It's really a privilege to be here once time. It was supposed to be an orientation training program. We got recruited back in 2019, and being new to the field, we then Vice Chancellor, Professor Nazir Saab, he conducted an orientation program across all the faculties, and it happened so it was my first time to be in Faculty of Fisheries. So all the moments, in fact, the dean then, I guess, who was the dean before? Balki Saab, yeah, Professor Balki Saab was there. He just conducted the orientation session here. In fact, we had an MSME program last year as well. I have some connections being in this very faculty of fisheries. Having that said, the task that we have, all of you have to deal. But before I come to my basic topic, that is entrepreneurship, which is the ecosystem that is across the country, that is promoting startups, businesses in all the fields, and agriculture happens to be the focus point of the government. But on a frank note, how many of you want or is aspiring or want to set up your own enterprise? Can you please raise your hand? 1, 2, 3. Be genuine. 3 people, right? And rest of you, if you don't have, give it a second thought. Because the competitive landscape is such that you have very limited options. Jobs are very scarce in government departments. Second, as you know, NEP has evolved from the year of its origin, 2020, that there is a much focus on what? On skill-based education. And in that skill-based education is that give our youth the capacity building, motivation, training in startups and all, and in developing a skill, any skill that they can come up with. And if skill happens to create an employment for yourself, there's nothing like that. So in that backdrop, I was supposed to, now let me come to what I have to discuss today. Are you comfortable with the medium of language? ठीक है, सारा कुछ सही है? ठीक है. All of you are participants, 25 of you. Okay, fine. तो मेरा entrepreneurship in aquaculture, right? I will try to focus on that. मैं आपसे कुछ ideas. It is not supposed to be a one-way traffic, by the way. मैं आपसे भी hopefully interaction करूँगा, आपके ideas भी सुनूँगा, so that we'll take something from the session. हम कुछ ले, बातें हम बहुत सारी करते हैं. The focus point will be कि हम कुछ session से लेके उसको आगे चलाएं. Obviously, my focus will be entrepreneurship के बारे में, आपको startups के बारे में बोलूँ. Can we have the next slide? तो normally session में मैं क्या करता हूँ? I normally get to know my audience. तो obviously आपका background, I call it ice break sessions. यानी आप मुझे बताएं. I have nothing to deal with your name, to be frank with you. But I would like to know your background as far as education or your family business is concerned. You can talk about that. And are you inclined for startup or not? Briefly, because we have very limited time. हमारे पास time की किल्लत है. So very briefly, talk me about say your background, education, or your family if you are in the family business. Plus, what I say, then jump on to are you inclined or thinking about some business or not? Can we have a start from here very quickly? Yeah, बैठ के वहाँ use करो mic आराम से बोलो. Quick. Assalamualaikum. Myself Udisha Banu from Kargil, Ladakh. I'm recently pursuing a PhD from this faculty. Okay. So you are pursuing PhD. Any family business that you have or aspiration for a startup? Udisha happened to be participating in one of the festas that were conducted in Shalimar campus. Yes.
You are good in some art, I guess. Yes. Can't you think that as a business venture if you are good in that? Is it your hobby? Yes, it's a hobby only. Okay, my point will be only that if you read out the history of entrepreneurs, they will tell you, maybe may not be all, most of them, or at least a good number of them, they will tell you that it was my hobby or my passion, my desire to do this, and they turned their passions into a business. You read about the life story of an entrepreneur. So my request also will go to that. Think about it. If you are good in some skill, take it to a business venture. Can we have from the next participant? Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum, sir. Sujan and Masters pass out from Fisheries Resource Management. Okay, great. Yes, I belong to a business family. We Excellent. have our own farm. My family deals with pharmacy. Okay. And yes, I recently got the idea that I will jump into entrepreneurship. I was Excellent. basically expecting that I'll go for a fish cafe kind of. Fish cafe. Yeah, Okay. it will include both live fishes and cafe in that. Okay, But great. somehow I got demotivated. I thought that I would pursue my studies. How this combination, I mean, say cafe and fishes, what is the combo there? Because it was like kind of restaurant, while there will be the. I was thinking that it would be like more pond-like restaurant, and there I will inculcate some kind of seating arrangement in the form of islands where customers they would be able to sit and then feeding the fish, and then we Enjoying a cup the of tea or recipes and all something. cafe. Yeah. Okay, it's a novel and a nice concept. Yeah. Although investment, it will require an investment, but it's a good Yeah. concept still. Hopefully it will see the day. Okay. But now I'm thinking that I will complete my studies first. I will go for PhD, then after that. Don't. My personal, it is the decision maker will be you yourself, obviously. The moment you join in the PhD, don't keep that burning desire. I mean, say stop or something. Side by side, do it. Our PhDs do permit this kind of a relaxation. So if you're inclined for PhD, although I know the commitments of joining in the academic world will be difficult to match up the startups, but I'm saying if you have a desire, please go ahead, proceed with that. Can we have the next very quickly? Assalamualaikum. Walaikum I'm assalam. Ikra, current person in PhD management. I don't start. किसे बताया इकरा? Sir, I'm currently pursuing PhD in Fisheries Resource Management, ठीक. and I don't have plans of any start. Sir, I don't have plans of any start. Okay, you don't have right. No issues. But hopefully देखते हैं क्या आगे चल के लाइफ हमें दिखाती है. I hope good things for you. Okay. Assalamualaikum, sir. Walaikum My name is assalam. Saifullah, and I'm presently pursuing Master's of Fisheries Economics. I don't have any family. No, not necessarily family हो, but मुझे एक background मिलता है. Sir. खुद का कुछ है, you want to join Sir. business? Not yet. Okay. ठीक है. Fair enough. Assalamualaikum, sir. I'm Reba. I don't belong to a business family, but I do want to pursue something in the entrepreneurship background. I want to start a cold chain in this valley because there is a lack of cold chain and the fishers Agreed. here, the fishers here lack that facility. But obviously the investment thing in that is bothering me a bit. So. I may share some knowledge about the schemes of the government. I may not fully threadbare talk about it, but I'll give some glimpses of certain schemes that can help you. The government is planning for infrastructure build-up, I guess between the tune of 1 to 2 crore. Obviously, it will require your investment as well, at least 10%. So on investment front, don't be afraid. But I will again advise you, your plan or the business plan or whatever you DPR you will make up, that should clearly, make the other party understand what you basically aspire for. So a bit of connections, networking, knowing the right sources, and plus your idea clearing of the idea will help in a long way. Yeah, good. Walaikum assalam. Fayaz from the very faculty, Shalimar, and I have completed my master's in agriculture. I have done a job. Last 1.5 years I am doing currently as assistant manager in one of the companies. Very good. But
So I you have some ideas in my okay. mind which I really need to execute. So you are from some business house. You have come here, right? Actually, that's a business house, but in my family we don't have any business. I'm Okay. a farming community, so I want to execute few of the plans that I have in mind, but Okay. I really need to explore the agriculture as whole. Then I will pick up the scenarios where I can work out. Okay, great. It will be hopefully this training may help you in that case. Assalamualaikum sir. My name is Dr. Malone and I am from Srinagar. I am already from business family. आप तो मेरे हमसाए हैं श्रीनगर से फिर. I am already doing business. श्रीनगर में कहाँ से आप? I am from Batmal. Okay, from Batmal. Kamarwadi, that is Hamsa. Okay. So it's already business. I am already in business. Of? Sir, ship transportation field which is Planta. Okay. Direct Transportation. Sir, units that should stone cashiers. That should feed the pan guide watch and supply. अच्छा ठीक वो. उससे तो रास्ता समझ लो उस थोड़ा बहुत. ये feed fishes को लेके हैं? Then? Fishing fish is just related. अच्छा ठीक construction. Okay. So recently उसने रास्ता समझ के लिए प्लांट का कुछ थोड़ा उसमें ताकि थोड़ा इंस्पायर हुआ तो मुझे बहुत शौक. चलो that's good. That's good. चलिए अच्छी बात है. Hopefully this training will serve some purpose for you. Can we have next? जल्दी से बोल दो. Sir, my name is Hilal Ahmed. You get the on. My name is Hilal Ahmed, sir. हाँ Hilal. Circle, and I complete my graduation in circle. My family background is also. फिर से ये क्वेश्चन किस तरह? हाँ Hilal. I belong to fishermen, sir. अच्छा you belong to. Okay great. तो अच्छी बात है. You know the business very well. बहुत नज़दीकी से देखा है. हाँ sir. Okay wonderful. हाँ जी next. Can we have next one? Myself, I'm from Crew, Luamos. Welcome. बिजनेस से दूर का नाता नहीं है. बट कुछ करने का कुछ बिजनेस सेटअप करने का कहाँ देख रहे हो बिजनेस? एक्वाकल्चर में देख रहे हो? बहुत जगह देखा. हाँ देखा तो है बहुत जगह. ओके ठीक. आई होप कहीं ना कहीं एक स्पार्क मिले दैट विल हेल्प यू टू स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस. कैन वी हैव नेक्स्ट? Myself Bilkis. Yes, please. I am from Pulwama. I have sir हाँ कोई भी खुश हो तुम. सर क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट होने के बाद मेरी शादी हो गई. ठीक. फिर मैं अपनी एजुकेशन जारी ना रख सकी. हाँ तो कोई बात शादी भी ज्यादा देर चल आपको मैं नहीं सकी. बताऊं एक चीज. एक बिजनेसमैन बनने के लिए एजुकेशन की नेसेसरी जरूरत नहीं है. जी सर. ठीक है. थैंक यू सर. तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है. और दानाई जो विजडम है वो जरूरी नहीं है एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन से ही आए. या प्लीज गो अहेड. जी सर. तो शादी भी ज्यादा देर न चल सकी तो इस वजह से थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आए. ओके. तो फिर मैं अकेली ही हूँ. व्हाट यू आर डूइंग करेंटली? अभी आप कुछ बिजनेस क्योंकि आपने ट्रेनिंग में भी हिस्सा लिया मैं है. यहाँ आई फिर हाँ. मेरी मुलाकात सर से डॉक्टर अशफाक. ओके. तो उन्होंने मुझे थोड़ा इस बारे में बताया था कि आप ये कर सकती हो. ओके. और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ. तो उन्होंने बोला था कि 7 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है यहाँ पे. बहुत अच्छा है. तो इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ. कुछ कर रहे हो बिजनेस के? कुछ नहीं सर, अभी कुछ नहीं कुछ कर रही. आर्टिजन वर्क कुछ ऐसा जी सर वो तो बहुत लाइवलीहुड के लिए? नहीं सर अभी कुछ नहीं कर रही. अभी कुछ नहीं कर अभी रहे. कुछ नहीं कर ठीक है कोई बात नहीं. आई होप कि कुछ ना कुछ आपको रही. जी जी सर. स्पार्क मिले. कोई सेशन ऐसा हुआ हो जिसमें इतनी नॉलेज या इतना कुछ ना होता है. कोई मोटिवेशन एक स्पार्क जरूरत पड़ती है जी जो ना एक टर्निंग पॉइंट बनता है. तो आई होप कि कुछ ना कुछ इससे वो स्पार्क मिलेगी. हाँ नेक्स्ट जल्दी से बता दीजिए. Assalamualaikum, sir. Myself Audrey and I'm from Ringwood Government. ओके. I recently my bachelor's and I came here just to get the idea of entrepreneurship. ओके. Rather aquaculture. ठीक. तो अभी कोई बिजनेस ऐसा नहीं. नॉलेज गेन करते हैं आगे देखते हैं कहाँ पहुँच जाते हैं. Yes, sir. Where the ship will land. ओके कोई बात नहीं. Can we have next? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम.
My name is Moin Farooq, and currently I am pursuing my master's degree in fisheries extension. I have done my bachelor's in the same university I am right now. And I don't belong to a business family, but I do want to become a businessman. I do want to start my own enterprise. क्योंकि आपने रेज किया था हैंड, है ना? कुछ था दिमाग में when you raised your hand already? Sir, actually, sir, मेरा fish processing unit, not specifically fish, but जो भी कोई भी for example chickens वगैरह मीट मटन वो प्रोसेसिंग यूनिट मेरा प्लान था. ओके, उस प्लान को क्या हुआ? सर अभी मैं करंटली फोकस कर रहा हूँ कि मेरी मास्टर्स डिग्री खत्म हो जाए. ओके. तो उसके बाद में थोड़ा मेरा फ्री का टाइम रहेगा तो उसमें. आपका नाम क्या है? मोइन फारूक. मोइन, एक चीज बताओ, कभी इंसान फारिग नहीं होता. हाँ, एक ही नाम से ऑब्लिगेशन रहती है. So it is better to start it today than wait tomorrow. So better is to, हाँ आपका तो दिमाग में रहता है कि हो जाएगा, but you will things will pile up. So अगर एक चीज पर आप start to have some sort of ना एक सबसे एक direction चाहते हो, start to work on. जी जी. ठीक है ना? Hopefully you will achieve what you have desired for. Yes. Next line up. बताओ. My name is so that we can hear you. Assalamu alaikum. My name is Basharat and I am doing. You are helping us in this, huh? Yes, sir. But you are a trainee as well. Oh, nice case. Yes, yes. Okay. Yes. I am doing masters in aquaculture in this faculty and I have done bachelor's from here only. Okay. We do have a family business of textiles and clothing. Excellent. And I have no plans. No plans. Family वगैरह उसको आगे नहीं चलाते हो और you have independent thinking, कुछ और करना चाहते हो. Sir, actually, बनाया business है, उसको आगे चलाओ. sir, देखते हैं. But independent thinking is also good. उसके बारे में सर भी सोचो. Okay, but I hope that some spark will come to you as well. Do you have any other participant? Yes, sir. जी. I'm Sabrina Bhatt, currently Okay. pursuing Masters from the Division of Aquaculture. And we are doing plans about in the startup but maybe in the future. Okay, yeah, sure. Of course, there is. My name is Ashwini and currently I am pursuing Masters in Aquaculture and I don't belong to the business family. ठीक. Currently I have no business plans. अच्छा, कोई बात नहीं. Let's see how this can turn. क्योंकि हर किसी को अलग-अलग अपना टाइम लगता है हर किसी चीज को सोचने में समझने में. Yes. कुछ फार्म जो? Sheep farm sir. Sheep farm. So this was a successful book publishing. क्या कितने जो sheep farm नहीं आता है कितने Sir, that much should scale ना बासान किया. मैं इसको विषय agriculture सुनते हैं. यानी इसका scale ऑफ सुनते ना ना उस दफा बेसिक के कितने जो sheep. So 5 साल बाद बहुत उसको मगर मैंने इंसान बाहर मुश्किल करो. So that मतलब जो successful book publishing house. So मतलब leading publishing house in competitive exams. ठीक, वाले आसान. तो दशु diversified business. Yes, हम उसको विषय agriculture में 10 बार खीर से अच्छा. अच्छा. Okay. ठीक है. वो दशु diversified. हालांकि एक दफा डॉक्टर मसरूर there was a one हमने ऐसे MSc की trainings करे थे. There was one entrepreneur था अपना business. उसने सबसे बोला जिसमें सबसे ज़्यादा profit है सुशील तीर business. It's not सुनिएगा sheep animal husbandry बोला ये सबसे बढ़िया. मुझे लगा he was dealing in saffron as well. वो saffron की भी farming के साथ उसकी बेचने के साथ जुड़ा हुआ. But he said this is the business in terms of the profit. दो in the line. ठीक है. So thank you all of you for sharing your background. ठीक है. देखिए as I said I belong to business management basically. Business पैसे के साथ मेरा सारा रहा है अपनी एकेडमिक नॉलेज. तो जो भी इसके रिलेटेड एक इंटरैक्टिव सेशन में मैं कोशिश करूंगा ना ही एक क्लासरूम का टिपिकल सेशन हो. बात करें इंडिया का जो स्टेटस है ऑल्दो इट वाज इन 2010 they were second in terms of the production. तो अभी इंडिया टॉप 3 में ही है. इट्स इन 3 ऑल्दो थोड़ा सा स्लगिश हुआ है उसके हिसाब से. क्योंकि जो ज्योग्राफी अगर आप इंडिया की थोड़ा सा देख ले देयर इज द लॉट्स ऑफ कोस्टल लाइन. तो कैन यू गेस कितनी मैंने कुछ एक स्टैटिस्टिकल डेटा लाया इसके बैकग्राउंड में मैं कुछ बोलूँगा.
और मैं ऐसी आई वाज व्हेन आई गॉट टू नो दैट दिस इज द टॉपिक, माय हैबिट इज आई हैव अ बैकग्राउंड एक्सरसाइज, मैं कुछ देख लूंगा पहले व्हाट इज द थिंग्स दैट आर हैपनिंग ग्लोबली। तो मुझे एक इंडोनेशिया इज अ वेरी सक्सेस स्टोरी इस चीज में, फिशरीज को लेके सेकंड टॉप पर है वो। और आपको पता ही होगी फिश फार्मिंग में सबसे ज्यादा कॉस्ट किस पर जाता है? फीड। लगभग 80 से 90% का लगभग आपको कॉस्ट आएगा। तो इसने बंदे ने क्या, और बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स आपको लगेगा उस पर देखने का, फीड टाइम पर हो जाए। तो इस इंडोनेशिया के बंदे ने क्या किया था, वो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टोरी लिंक पर आपको दे दी है, या आप खुद से भी देखिएगा। इट्स अ वेरी 3-4 मिनट का वीडियो है जो आपको थोड़ा इट विल बी आई ओपनर हाउ ही हैज लिंक्ड द टेक्नोलॉजी एंड फीड का उसने एआई बेस्ड प्रोसेसिंग कैसे रखा है, टेक्नोलॉजी और इसका। तो फीड का उसने क्या किया, ही हैज ट्राइड टू रिड्यूस द ह्यूमन मैन पावर। सो फैसिनेटिंग स्टोरी मुझे लगी। एंड ऑल्दो वी एट दिस स्टेज, जो आप अगर इस बिजनेस में जाना चाहते हो, यू मे नॉट वर्क ऑन दिस मॉडल। इफ समबडी इज गुड इन टेक्नोलॉजी, मे बी ही कैन शेक हैंड्स विद समवन, जो कोई दूसरा होगा उसको बोले मेरे पास ये टेक्नोलॉजी हो, मैं आपको इसकी कमर्शलाइजेशन के लिए आपको चार्ज करूंगा। बट द पॉइंट इज नॉर्मली जब बिजनेस स्टार्ट करना है हम छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप में, क्योंकि हम चाहते हैं रिस्क कम हो। ठीक है, हमेशा ये एक हिसाब से ट्रायल एंड एरर रहता है बिजनेस में, इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एक फैसिनेटिंग स्टोरी मैंने देखी है कि टॉप हाँ मैं भूल गया आपसे पूछना, मैं पूछ रहा था कोस्टल एरिया बहुत ज्यादा है। नाउ अगर आप गेस करिए इंडिया में लीडिंग फिश प्रोडक्शन कौन सी स्टेट करती है? एपी। 5 लीडिंग स्टेट्स है, लीडिंग एपी जो कि कोस्टल एरिया में लाइक करती है, आपका वेस्ट बंगाल है। गेस करो इसमें एक कोस्टल वाली एक आपका क्या बोले केरला है। ठीक है, जे.एंड.के इज वेरी लास्ट इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन, मगर पोटेंशियल बहुत है। ठीक है, पोटेंशियल क्योंकि यहाँ की हमारी इंडिजिनस कुछ वेराइटीज हैं दैट आर वर्ल्ड फेमस। आई एम ऑब्वियसली आपने इशारा मेरा देखा ही हुआ कहाँ की तरफ है। ठीक है, ट्राउट बेस्ड फार्मिंग। ठीक है, अब हम कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा फिश फार्मिंग के मुतालिक बात करूंगा। अगर आप कोई भी बिजनेस लगाओ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इट, क्या उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? वन इज इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। आउटपुट, प्रोडक्ट यानी आउटपुट क्या दोगे, और मैनेजमेंट, मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट है कि नहीं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, मगर आजकल एवेन्यूज हैं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत है वो मीट आउट होगी, क्योंकि मैंने जैसे आप बताया कि इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम कंट्री में बिल्डअप हो रहा है इंडिया में, वो ये है कि भाई यूथ को फाइनेंशियली और टेक्निकल नो हाउ में आप उनको कैपेसिटी डेवलप करो। फाइनेंशियली के लिए स्कीम्स बहुत सारी हैं, कुछ एक आधा मैंने भी लाई है, प्लीज गो थ्रू इट, डिटेल खुद से पढ़ लेना। मैंने आगे चल के वो थोड़ा सा लिंक वगैरह दिया है, एक 14 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो फाइनेंशियल मसला नहीं है, इंपॉर्टेंट है, मसला नहीं है, मैनेज करना लेटर ऑन मसला होगा, बट अवेल करना देयर आर सोर्सेज फॉर इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे लिए पर्सनली नंबर 1 है, विच एक्सपर्ट से कि मार्केट है कि नहीं, यानी इसके टेकर्स हैं कि नहीं, ये मेरे इलाके के लिए फीजिबल है कि नहीं। तो ये सबसे नंबर 1 कंसर्न रहता है। अगर अब हम फिश बेस्ड बिजनेसेस की बात करें, ठीक है, जो मैंने थोड़ा सा स्टडी करा, हालांकि फिश बेस्ड बिजनेसेस लो इन्वेस्टमेंट पर भी स्टार्ट हो सकती है। ऐसी आजकल टेक्नोलॉजी है, 4 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगाओ, पूल एक सेटअप करो छोटे से एरिया में, एंड यू विल स्टार्ट टू ग्रो फिशेस देयर। ठीक है, तो वो एक आप आगे चले, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे जो लगी फिश बेस्ड बिजनेस में, हाँ एक एक करके। लगभग अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, लगभग आप में से सभी फिश खाते हैं, ऑल ऑफ यू? देखिए आप नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? सर ये खाता है। देखिए एग्री कर रहा नहीं खाता है, तो घर में बनी होती है फिश वो नहीं खाता हूँ सर, जो मार्केट में जैसे प्रोसेस होती है, जैसे फ्राई होता है वो। अच्छा, फिश फ्राई। तो यू लाइक मोर ऑफ वो ना, वो पूरा सा क्रिस्पी टाइप है ना, गरस हाकस वाकस जिनसे बराबरी की। ओके, हालांकि बहुत सारे उनको लगती है, मतलब आप एक वेरिएंट फिश का मगर खाते हो, ठीक है, घर वाली वो मेड नहीं। द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड द वेरी पॉइंट इज दैट, मैंने थोड़ा सा सर्च किया, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, लगभग फिश को एज अ फूड सोर्स यूज
कर रहे हैं. So there is a huge demand for it. हाँ, now a person like him, you may have to create a different type of, because there are lovers of different varieties of fish. So fish की already existing demand है in our diet. Can we have the next slide? क्योंकि इसमें बहुत सारे obviously benefits हैं जो आपको पता है, वो talk about it. हाँ, मेरा जो सबसे important चीज़ है that it is a less risky investment venture. Less risky investment, हालांकि maintain करना है. रिस्की इन्वेस्टमेंट वेंचर इसलिए क्योंकि आप 4 से 5 लाख डिपेंडिंग आप इसमें लगा सकते हो एंड यू विल स्टार्ट टू गेट अ फिश फार्म रेडी. थोड़ा सा अगर आप प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हो, अगर प्रोसेसिंग तो बिल्कुल अलग लाइन होगी. तो कम इन्वेस्टमेंट में ये आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो. ठीक है, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड. तो हाँ, फीड कॉस्ट को आपको टैकल करना है. आपको यहाँ कहीं फीड, यहाँ हमारा मैन्युफैक्चर होता है. कहाँ? कहाँ आपको कॉस्ट हाई पड़ता है और कहाँ अच्छा कॉस्ट? डिपेंड करता है ना कंपोजिशन फीड का क्या. हाँ, एक्सीलेंट. कंपोजिशन आपको क्या चाहिए फीड में? प्रोटीन रिच होगा तो प्राइस ज्यादा ही होगा, प्रोटीन कंटेंट कम होगा तो प्राइस डेफिनेटली कम होगा. मगर सही डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ फिश के लिए आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट मैं ज्यादा दूं. तो उसकी नो हाउ आपको जरूरी आई होप सेशंस में देखी होगी. मैं साइंस ऑफ फिश ग्रोइंग के तरफ बात नहीं करूंगा, बट द इम्पोर्टेंट इशू इज फीड का सही से आपको कॉस्ट, वो सबसे ज्यादा कंपोनेंट जिसमें आपको सीखना है कि फिश की सही डेवलपमेंट कैसे होगी, वो जल्दी कैसे एक पर्टिकुलर साइज में ग्रो होगी. सो जो होपफुली बाकी सेशंस में आपने सीखा होगा. सो फीड का कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. आपको देखना है क्योंकि इसमें भी सब्सिडीज वगैरह आ सकती हैं. हालांकि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है. ऑपरेटिंग कॉस्ट मींस जो हर दिन आपको लगेगा. ठीक है, आए दिन जो आपको करना पड़ेगा. फीड कॉस्ट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू डे इन डे आउट आपको लगाना होगा. कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये थोड़ा सा सम अप करता है, नॉट इन टोटलिटी बट ब्रीफली कि फिश फार्मिंग या फिश बिजनेस में आपकी क्या थोड़ी सी मोटी सी रिक्वायरमेंट्स है. मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट. अच्छा, मैं ये नॉर्मली बोलता हूँ, आप मुझे स्टार्टअप आइडियाज दें. मैं एक लिंक लाया हूँ, अगर नहीं, जिनके पास नहीं है अभी, ठीक है, तो प्लीज गो थ्रू दिस लिंक. इसमें थोड़ा सा फिश फार्मिंग बाद में मैं होपफुली डॉक्टर मसरूर के हैंडओवर मैंने स्लाइड की हैं शेयर, ये आपको ग्रुप में शेयर करेंगे, तो आप ये खुद से लिंक देखिए. तो अभी मुझे जो स्टार्टअप आइडियाज आपसे लगे हैं, इनका तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एक्वाकल्चर से नहीं रिलेटेड है अभी. ठीक है, मे बी होपफुली आप इन सेशन से मुतासिर हो, अपनी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें लगाए. उनका तो इंक्लिनेशन है ही फिश को लेके, फिश की इसमें पैसा लगाने को. उनका तो बिल्कुल यूनिक है जो आप पीएचडी कर रहे हैं या परस्यू करने के लिए. ये मुझे आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्टली. ठीक है, आपका जो आइडिया है बहुत यूनिक है, मगर एज ए सेड ये ना डिफरेंट लेवल पर फिश फार्मिंग को ले जा रहा है, बिकॉज आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ इसको लिंक कर रहे हो. ठीक है, कॉम्बिनेशन में कर रहे हो. एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी. अगर का फैमिली बिजनेस है, दैट इज एन आइसिंग ऑन द केक. मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, बट आपको एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल, और ये कैसे आपके रेस्टोरेंट बिजनेस को भी ज्यादा सेल करेगा. क्योंकि कुछ चीजें होती हैं डिराइव्ड डिमांड, यानी कोई चीज अपनी डिमांड लाती है. मिसाल के तौर पर हमने कार लाई. ठीक है, कार एक बेसिक फंक्शनल चीज है जो आपको ट्रैवल में, कंफर्ट में मदद देगी, मगर इसके साथ बहुत सारी डिमांड्स एड अप होगी. अब क्या हुई डिमांड? पेट्रोल की ऑब्वियसली. अब क्या ही डिमांड? सर्विस की आ गई. ठीक है, तो इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ गई. ठीक है, डू टेक इंश्योरेंसेस लीगली है. तो बहुत सारी डिमांड्स इसके साथ जुड़ी हुई है. तो आप अगर कॉम्बो में ला रही हो, यू हैव टू सी टू इट. और कहीं जगह आई वुड रिक्वेस्ट यू सर्च इट आउट कि कहीं जगह इस किस्म का यूनिक कॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं. बिकॉज हमारे पास एक चीज़ है, वी हैव अ टेक्नोलॉजी ऑन आवर फिंगर टिप्स, वी कैन सर्च इट आउट. ठीक है, आज मतलब हम नहीं रह रहे हैं कि हमें पता ना हो. ठीक है, बट ऑब्वियसली आप फिर देखोगे ये हमारे एनवायरनमेंट में उस वर्केबल मॉडल में मार्केट उसमें रन करेगा कि नहीं. तो अगर आपके अभी नहीं है स्टार्टअप आइडियाज, आई होप दैट दिस सेशन, दिस ट्रेनिंग विल हेल्प यू टू जनरेट दो स्टार्टअप आइडियाज. ठीक है, तो कैन वी हैव द नेक्स्ट. तो नॉर्मली जब बिजनेस आइडियाज की बात आती है
बिजनेस आइडियाज कैसे, ऐसे ये मेरा आफ्टरनून सेशन में इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर मतलब लेबोरियस आफ्टरनून सेशंस, आप खाने के बाद आते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने सेशंस में ये जो है साउंड इफेक्ट्स रखता हूँ। बिजनेस आइडियाज अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, बिजनेस आइडियाज को एनालिसिस थोड़ा देखते हैं, बिजनेस आइडियाज कहाँ से आते हैं? क्योंकि देखिए एक चीज मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, एवरी सिंगल वन इन दिस हॉल उनके पास दिमाग है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें दिमाग दिया है, इट हैज टू थिंक, राइट? सर गलत सही, दैट इज अप टू व्हाट वी फील इट। द पॉइंट इज योर आइडियाज डू कम इन योर माइंड्स एवरी डे, बट मैं बात कर रहा हूँ कि बिजनेस का आइडिया, बिजनेस का आइडिया कहाँ से आता है? इट मे बी आइदर जैसे ये हैं, ये बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो लाइन एक ऑलरेडी बनी हुई है, तो इंसान वही सोचता है कि कैसे मैं अपने इस बिजनेस में जाऊं, छलांग लगाऊं। मैं कहीं कोई पैसों की वजह से करता है, कोई किसी को पैशन होता है, कोई चाहता है थोड़ा सा रिस्क लूं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी की हॉबी होती है, यानी मुझे इसमें जाना है, मेरा ये बहुत पैशन है। कोई फील करता है कि नहीं कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट डिमांड है, पूरी नहीं हो रही है, आई कैन फिट इन। तो बिजनेस आइडियाज बहुत सारे वजूहात से आ सकते हैं, ठीक है? कभी कभार किसी को ट्रेनिंग सेशन अच्छा लगा, नहीं स्ट्राइक हुआ नहीं बिजनेस, या कोई फेयर देखी जहां यूनिक प्रोडक्ट उसने सोचा था वही पाया, देन अ बिजनेस आइडिया। या जैसे मैं, आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड इसी की तरफ देखिए। सो देयर कैन बी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडियाज, बहुत सारे हो सकते हैं। सक्सेस स्टोरी, यहाँ कोई सक्सेस स्टोरी के लिए आया था somebody जिनने फिश फार्म अच्छे से की थी, कहाँ से थे वो गुजरात से थे। गुजरात से थे। कितना मतलब उनने किस फिश फार्मिंग, कौन सी फिश फार्मिंग के साथ? ओके, वो क्या कर रहे थे? वाज इट इन द प्रोडक्शन लाइन, ग्रो कर रहे थे? प्रोडक्शन लाइन में ग्रो कर रहे थे, सेल कर रहे थे, ठीक। उनके कंज्यूमर्स कौन थे? फॉर एक्सपोर्ट करते थे फिश की वैरायटी। ओके, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको क्या मुद्दे की बात बताई, मतलब व्हाट वाज द सक्सेस स्टोरी यू कुड सी दैट, मतलब जो आपको मोटिवेट करे। उन्होंने एक यूनिक चीज बोली कि इस फिश फार्मिंग में आप एक्सपोर्ट पोटेंशियल का कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोला। हमने स्ट्रीट वेंडिंग से स्टार्ट की थी और अभी एक्सपोर्ट में है वो। अच्छा, स्ट्रीट वेंडिंग से, हाँ, जैसे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट शुड सेट यू अपार्ट, इनके भी फैमिली में कहीं, शायद इन्होंने फैमिली में कहीं इसके साथ जुड़े हुए हैं, अगर इन्हें ट्रेनिंग की है, इसको ऊपर उठाना है। देखिए कहीं ना कहीं हाउ कैन आई थिंक बिग, सोचने में बड़े में कोई हर्ज नहीं, प्रैक्टिकली फिर कितना अचीव हुआ दैट इज समथिंग एल्स, कि कैसे उसने एक सिंपल हॉकर या जो वेंडर की वजह से एक छलांग करी कि ही वेंट टू द एक्सपोर्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं उसने एक विजन दूर कर रखा होगा। सो कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरी से इंसान को मोटिवेशन आता है, क्योंकि देखिए बिजनेस कोई भी काम करना, फर्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन कोई काम में आ जाए ना, हाफ जॉब इज डन, देन कम्स द एग्जीक्यूशन। क्योंकि जब तक अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, आई से एवरीथिंग इट विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, इट विल गेट यू इनटू योर नॉलेज सेट, दिमाग में बैठ जाएगा, हाँ सर का सेशन अच्छा था, खराब था, इतना हुआ तो खलास खेल इतना है। सो द पॉइंट इज मोटिवेशन, जो ये कोशिश कर रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं ना कहीं आपको अचीव करेगा। सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज जहाँ से बिजनेस के आइडियाज आ सकते हैं। एंड मैं एक चीज पर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, वन ऑफ द वेज ऑफ बिजनेस आइडियाज कैन बी डे टू डे प्रॉब्लम्स, जो आए दिन आप देखते हो प्रॉब्लम्स होती है, दैट कैन लीड टू अ बिजनेस आइडिया। ऑल ऑफ यू must be facing the problem of traffic jams, isn't it? There are some common day problems, so there must be a solution for it, and there must be a business idea for it. मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज देखिए गवर्नमेंट अभी जो काम कर रही है वो कर रही है किस फ्रेमवर्क में? PPP मॉडल, पब्लिक और प्राइवेट को मिला के। तो अब अगर बिजनेस आप सोच भी रहे हैं तो आप पब्लिक डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट मशीनरी को साथ में ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर बिजनेस आइडिया, वर्केबल मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या आप उनको कन्विंस कर पाएंगे अपने बिजनेस आइडिया से कि नहीं। एनीवेज, सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू जनरेट, कौन सी आपको स्पार्क डाले, कौन सा तरीका, कौन सा सोर्स आपका बन जाए, इट्स अप टू यू, आप कहां से इसको बिजनेस आइडिया ले सकते हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? तो मैं देखिए, हालांकि हम एको कल्चर के साथ इसको डील करेंगे, मार्केटिंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बात कही कि कोई भी आइडिया तभी वर्केबल होगा जिसका
मार्केट होगा। अब मार्केट में जाने के लिए एक लड़ाई करनी होती है। इट्स अ बैटल ग्राउंड। क्या है? बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड इन व्हाट सेंस? यानी किस हिसाब से ये बैटल ग्राउंड है? इसमें कंपटीशन है, इसमें आपको कस्टमर को अचीव या सेटिस्फाई करना है। लेट अस से हम मार्केटिंग में बोलते हैं डिलाइट, यानी वो बहुत खुश होना चाहिए। जब किसी को गिफ्ट दे दे बहुत खुश होता है, तो हम मार्केटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं मार्केटिंग डिलाइट। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो उसको खुशी देता है, क्योंकि या तो उसका वैल्यू इतना अच्छा होता है या उसका कुछ ऐसा फीचर है जो उसको बहुत खुश करता है। हमारा यहाँ वो कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में नहीं पहुंचता है। हम बातें हैं भाई बेचना है बस, ये मेन खतरे करती, ठीक है। कभी हमने सोचा है कि हम किसी कस्टमर को एक छोटा सा नोट लिखें, खुश हो जाए वो, क्योंकि वो हमारा कस्टमर है, हाँ उससे हमने पैसा कमाया है। दैट इज कॉल्ड ए कस्टमर रिलेशनशिप। एक आप रिलेशनशिप बात आते हो। अब वो तो सेकेंडरी बात हुई, अब मैं इसको मुद्दे की बात ये बोलता हूँ। जब आप मार्केटिंग टूल की बात करते हो तो इस लड़ाई के मैदान में, मार्केट की लड़ाई में आपके पास 4 हथियार हैं। क्या है? 4 हथियार। पहला हथियार आपका खुद का प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट, यानी जो आप प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो। चाहे आप फिश ला रहे हो, देखिए आप फिश फार्मिंग में एथिकली बिजनेस कोशिश करनी की। गेट द बेस्ट वैरायटी ऑफ फिश, फीड इट ऑन द बेस्ट सोर्स, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपके कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे। तो बेस्ट सोर्स से उसको फीड कीजिए। तो द प्रोडक्ट शुड बी ऑफ अ हाई क्वालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी प्रोडक्ट पर फोकस है। ये हथियार है आपको मार्केट में लड़ने के लिए। दूसरा है आपकी प्राइस, ठीक है, यानी किस कीमत पर आपको रखोगे। कीमत आपको लगता है ये ऐसी क्या होगा, कीमत है, बट कीमत सबसे बड़ा हथियार है। क्यों है हथियार? पहली एक चीज सुनिए, कीमत से ही आपका कंज्यूमर अट्रैक्ट होगा। आप देखते हैं बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो प्रमोट होते हैं, उसकी प्राइसिंग लिखते हैं 999 स्लैश करके, इसमें इतना % ऑफ है। दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल प्राइसिंग, यानी वो आपके बिहेवियर साइकी को हिट करते हैं। आपको कहाँ पता है उसकी ओरिजिनल प्राइस, राइट? सो दे आर वर्किंग ऑन योर बिहेवियरल साइड, यानी आपका बर्ताव कैसा है एज अ कंज्यूमर, क्योंकि एक फुल फ्लेज्ड फील्ड है बिहेवियरल प्राइसिंग, यानी आपके बर्ताव। हाँ, आप मुझे एक डिबेटेबल बात बोल सकते हैं कि सर कहीं ना कहीं प्राइसिंग तो कॉस्ट के साथ जुड़ी हुई है। मेरा तो खुद का खर्चा है ना, आई हैव टू कवर अप द कॉस्ट। मेरा जो खर्चा है एटलीस्ट वो तो मैं कवर करना है। एंड आई एग्री, पहले आपको देखना है आपका कॉस्ट बराबर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बट ऐसे कभी हालात आते हैं, ऐसा आपको मार्केट होता है कि जहां प्राइस गिवन है, मतलब आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जिसको हम कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं, ठीक है, यानी आप थोड़ा सा नहीं चढ़ा सकते हैं, गिराएंगे तो अपना ही नुकसान हो। बट आपका वहीं पर आपका प्रोडक्ट कितना क्वालिटी वाला है वो हाई प्राइस हो सकता है। मैं आपको डिटर्जेंट मार्केट की एग्जांपल देता हूँ, या डिटर्जेंट मार्केट है, या बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पर, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट देखिए, ठीक है, बहुत सारे फोन्स हैं जैसे एप्पल है, तो ये कहीं ना कहीं इसने अपना एक प्रेजेंस बनाया जो अपने आप को अलग करता है बाकी से, और हाई प्राइस्ड है, ठीक है। सो द पॉइंट इज, दूसरा हथियार है आपका प्राइस, ठीक है। अगर ये कहीं ना कहीं इनका कहीं प्राइस गिवन है, मगर कहीं आप स्कोप है प्राइस को छेड़ने का। तीसरा जो आपके पास हथियार है, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड सो दैट ये डिस्प्ले पर भी आ जाए। तो तीसरा हथियार आपके पास है हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट इट, ठीक है। देखिए आपकी फिश फार्मिंग है, अगर आप ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग करोगे तो इसकी एक सप्लाई चेन होगी या वैल्यू चेन, किसके पास आपको भेजना है। मगर अगर आप इनोवेटिव थोड़ा सा होंगे प्रमोशन को लेके भी, एक थोड़ा सा वीडियो डालना है, जिसको आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में कर सकते हैं इन्वॉल्व। वीडियो डालें आप कैसे फिश को एक रियल फीड देते हैं, कौन सा कंपोजिशन है, उसका वीडियो बनाएं, सो दैट कस्टमर जो वो वीडियो देखे उनको पता चले इनके पास सही फीड है, ठीक है, सही फीड है, उसकी कंपोजिशन आप बाज़ाब्ता बताएं उनको, और आपके फिश कहाँ पर रेयर होती है उस एनवायरनमेंट को थोड़ा सा दिखाए उस वीडियो में। 1 मिनट का क्लिप आपको बनाना है, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में एक वीडियो का क्लिप एंड पोस्ट इट, ठीक है। तो उसको कोई अच्छी सी टैगलाइन या कुछ ऐसा रखिए हैशटैग, तो दैट कैन सर्व यू। माय पॉइंट इज प्रमोशन आजकल इजी बन गया है, खतरनाक बन गया, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, अनपेड या उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। और इसी तरीके से आपके पास चौथा टूल है दैट यू कैन कम अप विद द प्लेस। प्लेस इज
हाउ यू कैन रीच टू द कंज्यूमर, कैसे, ठीक है। जैसे अजीज कैसे अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाता है? ऑनलाइन नहीं, फिर ऑनलाइन तो आप करते हो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, लॉजिस्टिक कंपनी के थ्रू। कौन सी है सर? एक तो मैं डिलीवरी और फास्ट बीटल और लोकल डिलीवरी यहाँ पे अगर करानी हो तो डिलीवरी हब। कस्टमर्स आपने कुछ वेबसाइट वगैरह कुछ बनाई है? सर मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया है। इंस्टाग्राम पेज, आई वुड रिकमेंड यू मेक ए वेबसाइट इन फ्यूचर, ठीक है, वेबसाइट बनाएं। और दूसरा है, आप अगर ऐसा बिजनेस है नाउअडेज यू कैन हैव इट ऑन Amazon, अगर हो सके उनके साथ टाइप, ऑल्दो दे विल चार्ज यू ऑब्वियसली, ठीक है, और उनकी क्वालिटी पहले एश्योरिटी चाहिए। माय पॉइंट इज कि आप कैसे पहुंचाओगे अपने कंज्यूमर, क्या कोई आउटलेट खोलना है, अगर ऑनलाइन इन्हें एक पेज बनाया उसके थ्रू करोगे, ठीक है। मुझे एक चीज बताए, फिश फार्मिंग में आपकी नॉलेज में कोई है ऐसा पेज दैट इज गोइंग ऑन, you have seen that are selling quality fishes या processed products? कश्मीर ट्राउट, एक और कोई है? Is not it a scope for you? क्या आप, मैं नहीं चाहता हूँ आप मैन्युफैक्चरर बने, आप सोल्यूशन प्रोवाइड करें ना किसी को। Enter into this business. It's not necessary you will be in the farming only. Enter in the supply chain. Supply chain में पूरा एक इन्वॉल्व होती हैं, जहां से रॉ मटेरियल आता है ऑल द वे टू मैन्युफैक्चर, ऑल द वे टू प्रोसेसिंग, ऑल द वे टू इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। आज पैकेजिंग डिपार्टमेंटल स्टोर्स का जमाना है ना, तो फ्रोजन फिशेस वगैरह का आप पैकेजिंग लाइन में भी जा सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस दैट इज एग्जिस्टिंग। तो आप सिर्फ फार्मिंग के साथ नहीं, बल्कि जो वैल्यू एडिशन जिस भी सप्लाई चेन में होती है वहां पर आप काम कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 टूल्स जो मार्केटर, या अगर आप फिश बिजनेस में चाहते हो, एंड दिस इज नॉट फॉर फिश बिजनेस, एवरी अदर बिजनेस, जो आपके लिए एक हथियार की तरह काम करेगा, ठीक है, आपको अपने बिजनेस में ऊंचा उठने में मदद देगा। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? तो नॉर्मली दे आर नोन एज 4 P's, ये मशहूर है 4 P's के नाम से। नेक्स्ट, हाँ ये चलते क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड दीज ऑल। हाँ, मैं अब आपके साथ एक एक्टिविटी करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अगर अजीज है, अजीज अपनी टीम में कुछ बंदे ले, ठीक है, जैसे इनका अगर बिजनेस आइडिया है वो अपने इसमें काम करे, जिसका नहीं है अगर सोच रहा है वो अपनी टीम को ले, ठीक है। तो रेस्पेक्टिव टिम्स में आप जाएंगे, आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट कोई सोचना है, ठीक है, फिश रिलेटेड, यू आर फ्री नाउ, रिलेटेड हो, नॉन फिश भी रिलेटेड हो, मैं आपको बाउंड नहीं रखूंगा, मगर आप बताएंगे मुझे ये किस मार्केट के लिए आपने बनाया है। मार्केट मैं आपको समझाऊंगा। मार्केट, एवरी पॉपुलेशन इज नॉट मार्केट, यानी जितनी आबादी वो मार्केट नहीं होती है, वो पॉपुलेशन ही है। मार्केट मींस कि जिनके पास एक तो विलिंगनेस है और उनके पास पेइंग कैपेसिटी, यानी वो विलिंगनेस प्लस पेइंग कैपेसिटी, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं डिमांड है, किसी चीज की डिमांड है आपके पास कोई तो इस डिमांड के लिए आपको क्या करना है कि जो टारगेट मार्केट है, आया ये यंगस्टर्स है, आया ये एज ग्रुप में एल्डरली है, या ये फैमिली है, या ये रेस्टोरेंट है, तो आपको ऐसे सोचना है टारगेट मार्केट, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे आप प्रोडक्ट कौन सोच रहे हैं और टारगेट मार्केट आपका कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, विल वर्क इन अ स्मॉल टीम, ठीक है। जिनका प्रोडक्ट आइडिया था ना अभी, तो वो आप अपनी हेल्प आउट करो, अजीज को किसी टीम मेंबर को, वो मैम अपने हिसाब से टीम मेंबर्स को लेंगी जिनका स्टार्टअप अभी नहीं था, क्योंकि उन्हें स्टार्टअप नहीं बोला मेरा है, ठीक है। आर वी रेडी? करेंगे एक्सरसाइज, at least give it a try, let's give it a try। तो can we have the next slide? एक्टिविटी है क्या, टीम असाइनमेंट एक्टिविटी है सिंपल सी, आप मुझे प्रोडक्ट बताएं, टारगेट मार्केट किन के लिए प्रोडक्ट है और कैसे उन तक पहुंचेंगे, एडवर्टीजमेंट मीडिया क्या रहेगा। यू गॉट 4 minutes टू डू दिस। टीम्स में जैसे मैं अजीज को बताऊंगा, आप अपना बताओ कैसे आप रीच करोगे। अगर उनका आइडिया लेना है, वो यहाँ से ये 2 है या ये 3 एक साथ रहे, ठीक है, वो एक आइडिया सोचे। आप इधर आइए, आप थोड़ा सा, सो दैट विल वर्क इन टीम्स। आप में से किसको बिजनेस आइडिया था? हाँ, आप थोड़ा सा एक टीम लीजिए अपने साथ, और वो वाले वहां से ले मार्केट के लिए, और उन तक कैसे पहुंचोगे, एडवर्टीजमेंट मीडिया के, कौन सा मीडिया करोगे।
Vai crescer hoje não é? आप इस पर माइक यूज करो. So we were discussing about a snack, instant snack that is of fish. Instant fish snack नाम दिया उस प्रोडक्ट का. तो उसका टारगेट मार्केट जो रहेगा that will be like gyms, departmental stores. Because nowadays we see people are being conscious about their fitness and health. तो fish में क्या है कि it is rich in protein, it is rich in fats, essential amino acid. तो इसमें बहुत benefits है. अगर हम बाकी जंक फूड को छोड़ के फिश स्नैक्स खाएं that will be healthy. ठीक पॉइंट है कि instant snack I like the idea. और उसके बाद आप बताओ टारगेट मार्केट और क्या डिपार्टमेंट. हाँ एक डिपार्ट लोकल मार्केट तो सारा कवर करेंगे. Then we can go for like national and international अगर क्वालिटी अच्छी रही प्रोडक्ट. नहीं लोकल मार्केट में अपने डिपार्टमेंटल स्टोर. डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जिम्स के साथ जो बाहर होते हैं ना आउटलेट्स फूड आउटलेट्स वहाँ भी. Because आजकल लोग ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देते हैं. हाँ. तो ये आपने अच्छी कैटेगरी पिकअप की है जिम्स वगैरह को. या सर क्योंकि दे आर प्रोटीन डाइट. या दे टेक प्रोटीन रिच डाइट. तो ये रहेगा. और एडवर्टाइजिंग मीडियम तो हमें तो यही ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कर सकते हैं. लाइक वी कैन बी ऑफलाइन कैसे सर. ऑफलाइन लाइक यहाँ पर जिम्स वगैरह होंगे तो उनके ओनर से बात करके लाइक वी हैव दिस स्नैक. अगर आप अपनी उनसे इट मींस आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट नहीं आप वहाँ सेल करोगे जहाँ पर वो क्लोज बाय कहीं सेल होते हैं प्रोटीन आइटम्स या उनको या जिम्स को डायरेक्टली सेल करो. हाँ वैसे भी कर सकते हैं और एक आउटलेट भी खोल सकते हैं अपना. उसके लिए आपको एक तो हाउ बिजनेस वर्क्स तो अगर नहीं इतना काफी है एज अ स्टार्ट. तो एडवर्टाइजमेंट मीडियम विल बी. व्हाट अबाउट ऑनलाइन सर. ऑनलाइन भी लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग. हाउ विल इट सर्व द पर्पस. क्योंकि आप तो जिम तक जा रहे हो आप तो जिम को डोर टू डोर सर्विस दे रहे हो. हाउ विल इट सर्व द पर्पस फॉर ऑनलाइन. होम डिलीवरी भी रखेंगे ना. अच्छा राइट. आजकल तो होम डिलीवरी सब प्रेफर करते हैं. तो सो यू आर वर्किंग इन बोथ. या सर right. It's a good. Can we have a round of applause? Together as a team, obviously. Anybody else? उसमें जो मतलब हमारा जो भी मेन कंसर्न है वो भी फिशेस है. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं. हम डिफरेंट फार्म्स जो है उनको ले उनके पास हम जा सकते हैं. उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि उनका क्या प्रोडक्शन मतलब उनका क्या प्रोडक्शन है पहली बार. और दूसरा फिर उसका हम मतलब कितना सर्वे पर जाएंगे. मार्केट सर्वे. ठीक. ओके. और वो क्या वो चाहते हैं कि वो अपना ये प्रोडक्ट जो है इसको एक कोल्ड चेन में ये करना चाहे या नहीं. तो इसमें हमारा एक तो ये है कि हम फार्म्स पे जाकर मतलब जो फार्म्स है यूजुअली उनसे ही हम पूछेंगे ये डेटा वगैरह कलेक्ट करेंगे. दूसरा हम इसका जो कोल्ड चेन का जो अब हमारा एडवर्टीजमेंट होगा वो हमारा हो सकता है थ्रू एक तो हमारा ये एक तो जब हम ऑन फार्म जाएंगे तो उससे एक तो वो हमारा एडवर्टीजमेंट हो जाएगा. दूसरा हम सोशल मीडिया के थ्रू इसमें ये कर सकते हैं. मुझे एक चीज आपके बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए. You will be having a cold storage facility for the fish farmers, right? Yes. How will they have to pay for your storage? That's the concern. I am not. That's one. Because you're not acting as a government. Remember that. So whenever you facilitate a fish farmer doing a market survey, you will ask them to pay for it. So you have to see farmers paying extra. It's a very difficult affair to fetch money from them. हाँ, अगर आप मार्जिनली सब्सिडाइज्ड कोल्ड स्टोरेज थ्रू द असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट और कम कीमत पर फार्मर्स को इसमें स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट. या आइदर छोटी सी स्टोरेज उनको रेंट पर दो. ठीक है. रेंटेड मॉडल कुछ ऐसा देखो. बिकॉज फार्मर मे नॉट बी एफर्ट क्योंकि वो तो कोशिश करेगा मेरा आइटम सेल हो मुझे एक्स्ट्रा बर्डन क्यों हो. रेंटेड मॉडल अगर छोटे से कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बन रही है छोटे से कोल्ड स्टोरेजेस जो एक स्पेसिफिक एरिया में कैपेसिटी कम के लिए है यू कैन सेल इट ऑन रेंट. वो मॉडल्स देख लीजिए. ठीक है. आइडिया अच्छा है जस्ट टू सेव द शेल्फ लाइफ बट एट द सेम टाइम हाउ कैन आई फेच मनी फ्रॉम इट. इट्स अ चैलेंज. इट्स अ चैलेंज. आपको थोड़ा सा और इसको स्टडी करना है. ठीक है. सो दैट ये थोड़ा सा कंक्रीट बन जाए. आप क्या करेंगे. रन ए सर्च.
कोल्ड स्टोरेज फिश फार्मिंग में अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे वो इसकी वैल्यू एडिशन में या इसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाते हैं एंड इट बिकम्स अ मॉडल फॉर देम. ठीक है. हाँ, कैन वी हैव द नेक्स्ट? कोई और जल्दी से, कैन वी हैव द नेक्स्ट? मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? कुछ भी जो आपने सोचा आप ये ऑन करिए. सोच के रखा है, जैसे कि हमें ये फिश फार्म बनाना है घर पे. तो अच्छा, वो बनाया आपने माइंड से? जी सर, हमें करना है. हाँ. तो जैसे कि हमारा जो घर है तो एक मतलब छोटा सा स्ट्रीम हमारे घर के अंदर से आता है, ड्राइंग वाटर. जी सर. तो जैसे ही मतलब वो साइंटिस्ट वहाँ साइट विजिट करने आए तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे ये सीड भी बना सकते हो इससे. और एक हमारा एक पुराना मकान है, बहुत पुराना है, तो बोला कि इसको आप मतलब तोड़ना नहीं, तो इसको हम ये बनाएंगे एक मतलब फीड के लिए. ठीक. हाँ, वो वैसे प्रोडक्शन. हाँ, सीड भी. तो फिर उन्होंने कहा कुछ प्रोसेसिंग मतलब जैसे वो मतलब कुछ पिकल फिश जैसे कबाब होते हैं. बहुत सारा कुछ बोला. हाँ सर, हम बहुत सारे इसमें जुड़े हैं. मतलब मेरी फैमिली है वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है. मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरी मतलब. ये किस स्टेज पर है अभी? मतलब अभी क्या चल रहा है इसमें आपकी इस बिजनेस में, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें. जी सर, अभी मतलब यहाँ से 7 दिन की ट्रेनिंग है. तो इसके बाद हमारा ये जो स्टार्ट होने वाला है, मतलब वो स्टार्ट हो जाएगा. आपको कुछ अपना पैसा निकालना है इसके लिए? जी. इन्वेस्टमेंट तो होगी. जी. मुझे उम्मीद है कि अगर आप प्रॉपर जो डिपार्टमेंट ने रखा है, सेंट्री स्पॉन्सर स्कीम या यहाँ की स्टेट की स्कीम्स हो, आप उनसे इफादा उठाइए, क्योंकि अच्छी खासी स्कीम है, सब्सिडी कंपोनेंट्स भी है, मगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी है. जी. ठीक है ना? जी, वो तो हो जाएगा सर. हम मतलब घर वाले जो मेरी फैमिली है वो भी इंटरेस्टेड है. आपके अलावा कौन इसके साथ जुड़ा हुआ है? मेरी बहन है. ओके. जी. और मेरे भाई है. ओके. तो वो बोल रहे हैं. आप कहाँ से आते हैं? जी, पुलवामा से. वो बोल रहे हैं कि जो भी खर्चा लगेगा, मतलब What telling you? डिपार्टमेंट? अच्छा, भाई बोलते हैं. जी, मेरा भाई. मतलब जो डिपार्टमेंट दे रहा है उसके अलावा जो खर्चा हो. अच्छा, मेरे पास तो कुछ है नहीं. ठीक. राइट. तो जो खर्चा आएगा मतलब पीछे से. He's like आप मतलब आपको पैसे इन्वेस्ट इसमें कर रहा है, but you will manage it. जी. अच्छा, मैं एक चीज बोलूँगा, क्लियरेंस रखिएगा कि जो इसका प्रॉफिट आए कैसे वो इसलिए है कि क्योंकि मतलब मेरा तो अभी कोई घर नहीं है. ओके. जो मेरे साथ हुआ मतलब इसलिए मेरे घर वाले मुझे बोल रहे हैं कि हम आपको स्टैंड. तो इनके लिए एक चीयर्स करिए. It will be a success. तो होपफुली क्योंकि आपके भाई भी सपोर्ट कर रहे हैं, होपफुली इट विल बी अ सक्सेस. टैप इन द राइट. वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है खुद सर. खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. Wonderful. I mean, ask it that some of you, the buses are waiting. Time ज़्यादा होना चाहिए तो इस एक्टिविटी को हम पूरा कर पाए. I have the next slide just sharing with you regarding some of the schemes that are from the center. Can you have look on the board? ये एक स्कीम है PMMSY, तो you can have a look on it. मैंने दी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन. एक 14 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको गवर्नमेंट लगभग 50 से 60% की सब्सिडी फिश फार्मिंग या प्रोसेसिंग में आप जाएंगे लगभग अवेलेबल. एंड फॉर द वुमेन फोक, क्योंकि मैम आप खुद हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा गवर्नमेंट देगी इस स्कीम के अंडर. मैं चूँकि मैंने सर को दे दी है PPT, प्लीज़ गो थ्रू इट. वो देखिए. सिंस वी हैव पॉसिटी ऑफ टाइम, इट वाज वेरी नाइस टू टॉक टू यू और इंटरेक्ट करूँ आपसे, बट आई वांटेड अ सेशन मोर, क्योंकि मुझे एक और आपके साथ काम था. बट विद दीज वर्ड्स आई done my case. Thank you all of you. Lecture with all of us, and thank you sir for motivating us to start up our own ventures. Thank you once again.